بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے چیف منسٹر صاحب جو ایک بتا رہے تھے، خاکہ جو ڈرا کر رہے تھے، وہ اس کو لے کے اگر ہم آگے بڑھیں تو یہ تقریباً 2-2.5 سال کا ایک پروسیس ہے۔ اب اس دفعہ ان کے پاس، حکومت کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ ایک سائڈ سے جو کہہ رہے ہیں نا خوشخبری والی بات، تو بڑی اچھی بات ہوگی خود، لیکن پہلے خوشخبری سنائیں، اس کے بعد اس کو گریجولی ڈرا کریں۔ ادروائز گندم اور ٹیکس یہ دو چیزیں ہیں گلگت کی پولیٹکس کو شیپ کرنے والی، ورنہ عوامی ایکشن کمیٹی وہ پولو کھیلے گی اکیلے ہی میدان میں کہ یہ سارے امپائر دیکھتے رہ جائیں۔ ایک چیز طے ہے، بالکل طے ہے، اور اس کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ آئینی عبوری صوبہ گلگت بلتستان اگر بننے جا رہا ہے تو پھر آپ کے الیکشن 2023 میں ہوں گے، اور اگست 2023 میں گلگت بلتستان میں بھی پاکستان کی طرح آپ کی نگراں حکومت اسٹیبلش ہو جائے گی۔ پچھلی حکومت نے جو کام کیا ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، سیاسی لوگ نہیں کرتے ہیں یہ ان کی طرف، ہمیں کم از کم کرنا چاہیے۔ اگلی دفعہ جب یہ حکومت نہیں ہوگی، کوئی اور آئے گی، ہمیں اس حکومت کے کیے ہوئے کاموں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آئی بیکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حاضرہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے گلگت بلتستان کے عوام کو خوشخبری سنائی ہے کہ عبوری آئینی صوبہ کے حوالے سے فروری کے مہینے میں بہت بڑی خبر ملنے والی ہے، اور اس خبر سے پہلے گلگت بلتستان اسمبلی میں ایک اور قرارداد عبوری صوبے کے سلسلے میں پیش کی جائے گی۔ وہ آج گلگت میں صحافیوں سے ایک غیر رسمی ایک نشست سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پہ انہوں نے گلگت بلتستان میں بجلی بحران کے علاوہ گلگت بلتستان کے بلدیاتی انتخابات پہ بھی بات کی، اور جو گندم سبسڈی کے معاملات ہیں جس پر عوام ہمیشہ احتجاج کر رہی ہے، اس پہ بھی انہوں نے بات کیا، اور اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ایمان شاہ صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار شبیر میر صاحب۔ ہم آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور شاہ صاحب آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جو عبوری آئینی صوبے کا معاملہ ہے، اس پہ ایک بڑی حد تک ایک ڈیڈ لاک سی صورتحال پیش آئی، اور کافی عرصے تک اس کی کوئی خبر بھی سامنے نہیں آ رہی تھی، تو پھر اچانک وزیر اعلیٰ نے اس کو دوبارہ لا کے پیش کر دیا ہے۔ دیکھیں، اس میں میرے خیال میں یہ آج بہت بڑی خبر ہے، یہ جو چیف منسٹر گلگت بلتستان نے یہ بتا دیا کہ فروری میں اس پہ بہت بڑا بریک تھرو ہوگا، یا گلگت بلتستان کے عوام کو خوشخبری ملے گی۔ اور وہ بتا رہے تھے کہ ہم آئینی عبوری صوبے کے حوالے سے فائنل راؤنڈ میں آلموسٹ داخل ہو چکے ہیں، آخری مرحلہ ہے ان کا، یہ کہنا تھا قرارداد کے بعد فائنل ہوگا۔ جی، اب وہ یہ جو چیزیں ہیں ظاہر اس تمام ایشو کو فروغ نسیم دیکھ رہے ہیں جو وفاقی وزیر قانون ہیں، اور فائنل ڈرافٹ پرائم منسٹر کو ارسال کیا جا چکا ہے، جو میرے خیال میں آپ نے اس پہ پوری ایک محنت کے ساتھ سٹوریز بھی بنائی، اور آئی ویکس میڈیا نیٹ ورک کے اس میں یہاں پہ وہ سارے ڈسکس ہوا کہ آئین پاکستان کے کتنے آرٹیکلز میں 11 آرٹیکلز میں امینڈمنٹ ہے، اور اس کو کیا کس طریقے سے کیا جائے گا۔ ظاہر ہے جب جہاں پہ ڈیڈ لاک آیا تھا، میرے خیال میں وفاقی حکومت اور جو آپ کے ادارے تھے وہ تو آلموسٹ اس چیز پہ فائنل اس پہ آ چکے تھے، بٹ یہاں سے ایشو آ رہا تھا جی بی کے اندر سے کہ سینٹ میں گلگت بلتستان کی حکومت یا چیف منسٹر گلگت بلتستان کا یہ کہنا تھا کہ 4 کی بجائے ہم نے 8 سیٹوں کا ڈیمانڈ کیا ہے۔ اس پہ وہاں سے ان کو بتایا گیا کہ آپ 8 سیٹوں کے ڈیمانڈ کو لے کے اپنے اسمبلی سے قرارداد پاس کروائیں، اس کے بعد پھر وفاقی حکومت اگلے اس سٹیج میں یا اگلے راؤنڈ میں داخل ہوگی۔ تو یہ جو آپ کی جو صوبائی اسمبلی ہے، وہاں پہ قرارداد پیش کرتے کرتے 5 ماہ لگ گئے۔ اب یہ 5 مہینے کیوں لگ گئے؟ اور ابھی بھی مشاورت نہیں ہوئی ہے ابھی تک، میرے خیال میں ابھی تک اپوزیشن سے سوال ہے، اپوزیشن بھی اس میں پراسرار یا اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، معنی خیز ہے کہ اپوزیشن امجد ایڈوکیٹ بھی اس معاملے کے اوپر پچھلے کافی عرصے سے وہ کراچی یاترا میں زیادہ شور شرابہ نہیں مچا رہے، ٹھیک ہے، وہ بھی خاموش تھے۔ اب ظاہر ہے اب میڈیا کے ذریعے بھی پریشر آیا، پبلک کی طرف سے بھی، یہ سارے اس تمام معاملے کو مانیٹر کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، تو اب جا کے چیف منسٹر نے اس پریس کانفرنس میں اس ایشو پہ مکمل طور پہ جو ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ بات کرتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کوئی ڈیڈ لائن دیتے ہیں، یہ بتانا کہ فروری میں اس پہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی، آج میرے خیال میں سب سے بڑی خبر یہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میر صاحب، گلگت بلتستان اسمبلی میں دوبارہ قرارداد آ رہی ہے، اور اس کے بعد حتمی راؤنڈ شروع ہو جائے گا، کیا آپ کا تبصرہ ہے اس پہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرارداد آ رہی ہے، جب آئے گی تو بات کریں گے میرے خیال میں۔ قرارداد تو یہی آنی ہے نا کہ آپ نے نشستوں کو آٹ کرنا ہے، کیا پتہ آئے نہ آئے، کب آئے، اب تو ڈیڈ لائن تو مل گئی ہے۔
वज़ीर आला की तरफ से? नहीं, वज़ीर आला ने जो अभी मैं चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद तो नहीं था, लेकिन अभी शाह साहब ने और आपने जो बताया कि खुशखबरी मिलने वाली है, वज़ीर आला ने ये कहा है, तो ये क्या मतलब इसका? मतलब अगर टू द पॉइंट ये कहा जाता कि सूबा बन रहा है, इस खुशखबरी से मतलब ये थोड़ा सा मतलब तो यही होगा, मतलब यही होगा, लेकिन फिर उसमें बताने में तो कोई हर्ज नहीं था ना। खुशखबरी तो बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि घर आबाद हो गया, खुशखबरी है। सर इतना तीसरा मेहमान आ रहा है तो खुशखबरी है। सर थोड़ा सा ये सस्पेंस नहीं बल्कि डाउट्स हैं जो खुद से हैं कि अब अगर हम आज यही बताते हैं क्लियर कट कि ऐलान होगा उस टाइम पे, कोई कागज़ फाइनल होगा, अबूरी सूबे के हवाले से अच्छी खबर क्या होती इस हद तक तो आप नहीं, इसकी ज़रा आप तशरीह करें, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि अच्छी खबर क्या हो सकती है? अच्छा, वो देखा भी है कौमी असेंबली में बिल पुट अप हो सकता है, ये हो सकता है, ये एक डेवलपमेंट हो सकती है। इससे ये बड़ी इस तरह की- मतलब बाकी आपकी सूबाई असेंबली से करारदाद का पास होना ये कोई बड़ी ये खबर बड़ी नहीं बात है। नहीं है, ये तो रूटीन की बात ये है। तो हमने इतनी करारदादें पास की हैं अब तक के रेजोल्यूशंस के जिनका मैंडेटरी है ना यहाँ से पास करना, तो पहला इजलास पहली करारदाद अबूरी सूबा, हाँ, मतलब करारदाद पास तो करवाते हैं। ये तो कम से कम जब से अगर असेंबली बनी है। मुशर्रफ के दौर से इस तरफ आप आ जाएं, जो मैं और शाह साहब कवर करते रहे हैं, तो वो हमारी रिपोर्ट्स हैं कि इतनी करारदादें पास हो गई हैं, लेकिन वो अब किसी को याद भी नहीं होगा कहाँ पड़ी हैं। ठीक है। अब होना, अगर ये रिक्वायरमेंट है तो करारदाद बेवकूफ़ पास होके होनी रह गई चाहिए, है, बेवकूफ़। लेकिन ये कि ये खुशखबरी से इसको थोड़ा सा फर्दर एलेबोरेट होना चाहिए था कि खुशखबरी सुबह बन रहा है ना, लेकिन इसको थोड़ा सा और डिफाइन करके, नैरो डाउन करके। तो बहरहाल अच्छी बात है, सुबह बन रहा है और बनना चाहिए। जिस तरह के दावे, जिस तरह के ऐलानात, जिस तरह की खुशखबरियाँ पहले से चली आ रही थी और बीच में एकदम वो जो नहीं कहते हैं पी के मैं लुल हो गया, वो मामला ही लुल हो गया था बीच में आके। तो अब थोड़ा सा स्पीड अप हो गया, उस तरफ जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। इनके साहब के ये जो खदशात है, जो जिनके लिबरेशन की मज़ीद ज़रूरत है, ये दुरुस्त साबित नहीं होते हैं। आपका इस हुकूमत के सपोर्ट में वजन नहीं, मैं असल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो चूंकि हमें डिटेल्स का नहीं पता है ना, मैं और शाह साहब और आपको इतनी बारीकियों का नहीं पता है, तो जिनको पता है वो थोड़ा सा बताएं। वो सारी चीज़ें रिपोर्ट तो हो चुकी है। उसमें मेरे ख्याल में जो इशू आ रहा है ना अभी, जो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम में बीच में कोई इस तरह की बातें चल रही थी कि शायद वो कंट्रोल टावर और नहीं, वो जो इतने ज़्यादा कोई राब्ते मौसर नहीं रहे। बट अभी कल जो रात को मिनी बजट और ये स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से जो बिल पेश हुआ, और उसमें जिस तरह से जो है राब्ते ज़ाहिर है, मतलब तो इस हवाले से भी मेरे ख्याल में ये है कि अगर सूबाई असम्बली से करारदाद होती है और असम्बली में ये बिल पुटअप होता है, और अगर ये जो हमारे इदारे इसमें ज़ाहिर वैसे रोल है, मेरी जो नॉलेज है या मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है या इसको जो भी समझ लें, उसमें यह है कि इस दफ़ा इदारों की ख्वाहिश है, जो भी आपके आर्मी के या फ़ौज के इस्टेब्लिशमेंट के जो भी इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ पाकिस्तान आर्मी तो नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे इदारे हैं, उनकी ख्वाहिश है कि ये इस तरह हो। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादातर ये कन्फ्यूजन थी, बात ये हो रही थी, अगर ये GB को आईनी अबूरी सूबा बनाने के हवाले से बिल पुटअप होता है कौमी असम्बली में, वहाँ से ये टर्न डाउन होता है, तो ये इंडिया वहाँ से फिर एक प्रोपेगेंडा शुरू करेगा। ये टर्न डाउन का मतलब मुस्तरद होता है, तो अब जाहिर है इसके लिए PMLN और पीपल्स पार्टी को तो ऑन बोर्ड लेना जरूरी है। अब जिस तरह से ये जो 300 अरब से ऊपर जायद के टैक्सेस लगे, मिनी बजट पास हुआ, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी जिसकी डिटेल्स बताने की हमें जरूरत नहीं है, जिस तरह से वो चीज़ें रातों रात सारे मामला जो है ना बिल्कुल साफ सुथरे अंदाज में तय हो गए, तो मेरे ख्याल में खुशखबरी यही हो सकती है कि फरवरी में गिलगित बल्तिस्तान को आईनी अबूरी सूबा बनाने के हवाले से बिल आपके असम्बली के फ्लोर पे पुटअप होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा वज़ीर आला ने जिन अहम इश्यूज़ के ऊपर आज बात की थी, उसमें बिजली थी। बिजली की सूरत हाल तो माजी से बहरहाल बेहतर हुई है, और वो ख़ुद इसका एतराफ़ करते हैं कि जो होना चाहिए था वो नहीं हो गया, थोड़ा सा बेहतर ज़रूर हुआ, और आइंदा साल इससे ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद है, और उसने बड़े मंसूबों की जो सारी तफसीलात बता दी। लेकिन जो जिस मामले पर बहस की ज़रूरत है वो गंदम का मामला है, जिस पर खुसूसी तौर पे आप हमेशा आवाज़ उठाते रहे, करप्शन के हवाले से, गंदम चोरी होने के हवाले से, उन पर जो गुफ्तगू रही उस पर क्या आपका इज़हार ख़याल है? देखिए, गंदम के हवाले से सीधी सी बात है, गंदम के मामले में करप्शन हो रही है। ये करप्शन आज से नहीं हो रही है, ये मेदिशा दौर से। अभी तो मोमिन जान साहब आए हैं, अब वो सिम साहब भी बड़ी तारीफें कर रहे थे मोमिन जान साहब की। अगर मोमिन जान साहब बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, अब उनकी कॉम्पिटेंसी का अंदाजा हो जाएगा। ये जो चोरी हो रही है, ये मैं बता रहा हूँ चोरी हो रही है,
یہ ملیشیا دور سے ہو رہی ہے. اب پیپلز پارٹی کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ گندم کی جو سبسڈی تھی اس حوالے سے گندم یہاں یہ لاتے رہے, پیسے جو ہے نا کوئی وفاقی واپس دیتے نہیں رہے, واپس دیتے نہیں رہے, کھاتے رہے. کوئی 30 ارب کے قریب, 32 ارب کا لائبلٹیز جب ڈیولپ ہو گئے تو جب پیولن کی حکومت آ گئی وفاق میں 2015 میں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے تھے 8 جون 2015 کو. 4 جون 2015 کو وفاقی بجٹ پیش ہوا. اس میں سبسڈی کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہو گئی جس کو لے کے اپوزیشن نے, چونکہ الیکشن میں 4 دن باقی تھے, اتنا شور مچایا کہ اس وقت یہاں پہ چونکہ پی ایم ایل این کی پوری کیمپین چل رہی تھی, کرمانی صاحب اس کی نگرانی کر رہے تھے, یہاں موجود تھے. انہوں نے فوری طور پہ وفاقی حکومت سے رابطہ کیا. اگلے دن 5 جون کو فیڈرل منسٹر فار فائنانس اس وقت کے اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں پہلی مرتبہ جی بی کے اوپر جتنی لائبلٹیز تھی 30 ارب کی, انہوں نے کہا جی یہ 30 ارب روپے وفاقی حکومت ادا کرے گی, اور سالانہ انہوں نے پھر 6 ارب روپے آپ کے لیے مختص کر دیے کہ اس 6 ارب پہ جتنی آپ کے لیے گندم بن سکتی ہے وہ چلا دیں. ظاہر ہے اس وقت جو ریٹس تھے گندم کے 4000 میرے خیال میں اس وقت 100 kg کی جو بوری ہے اس کے ریٹس تھے, آج وہ 8000 پہ غالباً اس کے ریٹس پہنچ چکے ہیں. تو لیکن مسئلہ بیچ میں یہ آ رہا ہے کہ جو بھی 14 لاکھ یا 15 لاکھ کی گندم ہے وہ اگر مینیج کر کے سپلائی کریں تو معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. بٹ آج جو چیف منسٹر بات کر رہے تھے, ان کے پاس 2 آپشنز ہیں. یا تو یہ گندم کی فی کلو قیمت جو ہے نا یہ 5 سے 6 روپے بڑھا دیں, یا پھر اس کے ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جائے. 2 میں سے تیسرا ان کے پاس اب آپشن باقی نہیں رہا, جس کے لیے ان کو آل پارٹیز کانفرنس, لیکن سیم صاحب کا کہنا تھا کہ ہم یہ مسئلہ لے کے صوبائی اسمبلی میں جائیں گے. میر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, یہ جو گندم سبسڈی کی مجموعی صورتحال ہے آپ بھی دیکھتے ہیں, آپ کے آس پاس میں ہی روزانہ کی بنیاد پر احتجاج, ہڑتال, روڈ بلاک صورتحال ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ عوام کو گندم نہیں مل رہی ہے. تو بنیادی طور پر ایشوز کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ سارے افراتفری کا سما پیدا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, یہ گندم سبسڈی کا جو ایشو ہے نا, یہ اتنا آسانی سے حل ہونے والا ایشو نہیں ہے. اس کے لیے اب چونکہ یہ صوبے کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے تو یہ واحد حل ہے کہ آپ آئینی حقوق چلیں, عبوری آئینی ہی دیتے ہیں. عبوری آئینی صوبے کی بات کرتے ہیں تو وہ بعض ہمارے دوست کہتے ہیں عبوری تو ضمانت ہوتی ہے, یہ عبوری صوبہ کیا ہوتا ہے. بہرحال جو بھی ہوتا ہے یہ کم از کم عبوری صوبہ دے کے اس کو جسٹیفائی کریں کہ آپ خود کچھ وڈرا کریں نا, سبسڈی کم کرنے. ادروائز ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیں اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ آئینی حقوق سے, نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن والی اس کھاتے میں جاتا ہے یہ. تو اب اس دفعہ ان کے پاس, حکومت کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ ایک سائڈ سے جو کہہ رہے ہیں نا خوشخبری والی بات, تو بڑی اچھی بات ہوگی خود, لیکن پہلے خوشخبری سنائیں, اس کے بعد اس کو گریجولی وڈرا کریں. ادروائز گندم اور ٹیکس یہ 2 چیزیں ہیں گلگت کی پولیٹکس کو شیپ کرنے والی. ورنہ عوامی ایکشن کمیٹی وہ پولو کھیلے گی اکیلے ہی میدان میں کہ یہ سارے امپائر دیکھتے رہ جائیں گے. پہلے میرے خیال میں دیکھیں کوئی نہیں چاہے گا کہ مس یوز ہو نا, مطلب گندم کا ہی. اب جن کے پاس, بلکہ پچھلے دنوں میں نے پروگرام میں اس کے حوالے سے بات کی تو ہمارے کچھ دوست اتنے ناراض ہو گئے کہ باقاعدہ آرٹیکل لکھ ڈالے میرے خلاف ہی. یہ جسٹیفیکیشن دی کہ کیا اب گلگت بہت ترقی کر گیا ہے. باتیں ان کی بہت ساری ٹھیک بھی ہیں, لیکن اب میں چونکہ اس کو لنک کر رہا ہوں کہ اب نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں کہ صبح اب اگر دے رہے ہیں نا, صبح بنے گا, شیپ آ جائے گی, تو اس کے بعد چیزیں پھر آپ کو یہ چیزیں ان کے ساتھ آپ پھر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکیں گے. ادروائز تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ احسان صاحب نے کس طرح اس مومنٹ کو, عوامی ایکشن کمیٹی کو سٹارٹ کیا, اور اس کے بعد کتنی زبردست اس وقت جب یہاں پہ صرف فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر مظاہرے ہوتے تھے اور کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں تھی. احسان صاحب نے ان سب کو جمع کر کے زبردست سیاسی ایکٹیویٹی باقاعدہ پوری دنیا کے اوپر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئینی صوبہ عبوری آئینی حقوق کے حوالے سے کنکریٹ سی بات کریں, اس کے بعد پھر بے شک وڈرا کریں, لیکن ان لوگوں کے لیے جو ویل آف ہے, غریب کو سبسڈی ملنی چاہیے جو بھی اس کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے, بھلے صوبہ بنے نہ بنے. ظاہر ہے اب کیا ہے, دیکھیں یہ جمہوریت یہی ہے نا کہ میجورٹی از اتھارٹی. اب عوام مل کے جس کو بھی نمائندہ منتخب کرتی ہے ووٹ کے ذریعے وہ بن جاتا ہے نا, وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے, وہ چیف منسٹر بن جاتا ہے. تو اسی طرح یہ بھی ان کی ایک ڈیمانڈ ہو سکتی ہے, لیکن ان کو سمجھانا ہوگا کہ اس کے یہ فائدے ہیں, یہ نقصانات ہیں, اوور آل اس کو دیکھنا ہوگا. لیکن پہلے سیڑھی میرے حساب سے عبوری آئینی صوبہ یا آئینی حقوق جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوگا.
मम्मी जी जरा जोर से बोले, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अरे मैं जोर से ही बोल रहा हूँ, आप कहीं बाहर निकले हैं। ये फोन भी पागल हो गया यार। जानी अब तो जान छोड़ दे इस फोन की। यार ये बेचने के लिए टाइम मिले तो नया लूंगा ना। अबे जानी कुछ हटके करना। ले हट गया, अब क्या करूँ? जानी तू गिलगित ऐप कर। क्या यार, तू भी नई नई ले आता है। जानी गिलगित ऐप से तेरा ये फोन पूरे पाकिस्तान में कोई ना कोई तो ले ही लेगा। अच्छा पूरे? हाँ हाँ पूरा पाकिस्तान। ब्रो गिलगित ऐप पे इस फोन की फोटोज लगा, मुनासिब कीमत लिख और पोस्ट ऐड कर। यार तू ये फोन बेच और गिलगित ऐप से नया फोन खरीद। ये क्या? तुम्हारा नया फोन। वाकई? कुछ हटके कर। ठीक हो गया। इसके साथ मैं आपकी तरह आपसे आखिरी क्वेश्चन भी पूछूंगा। गिलगित बल्तिस्तान में 2004 से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए हैं और मौजूदा हुकूमत में कुछ चीज़ें हमें नज़र आती है जो उनकी एक्टिविटीज़ रही है इंतखाबात कराने के लिए। लेटरबाजियाँ बड़ी तेज़ी से हुए। लगता है कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे। देखें अभी पिछले दिनों तक तो बल्कि मैं और शाह साहब ने भी इसके ऊपर गपशप की थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज़्यादा एक्टिव थे, लेटर्स पे लेटर्स लिखे जा रहे थे और हुकूमत को जगा रहे थे, झंझोड़ रहे थे कि आप करें, लेकिन उधर से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था। अब अगर लेटेस्ट कोई डेवलपमेंट इसके ऊपर हो गई है, अच्छा डेवलपमेंट तो चली आ रही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पिछली हुकूमतों में नहीं थी, वो ग्रेजुअली हो रही थी। अब इस हुकूमत के पास जिस स्टेज पे ये आए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड अप करना होगा। इनके पास खुद इन्हें नहीं पता है कि इनकी हुकूमत 2023 तक है या 25 तक है। सही है। तो अब करवाना है तो इनको बहुत सारे बड़े बड़े काम करने होंगे। अदरवाइज़ होगा ये कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई और हुकूमत आ गई तो इनके सारी ये जो इमारतें खड़ी की हैं ना बहुत सारी, उनको साइड पर रख के उस हुकूमत ने जो भी नहीं आएगी उसने अपनी खिड़कियां खोलनी हैं। तो इस डेडलाइन को मीट करना इनके लिए होगा अगर ये करवाना चाहते हैं। ठीक होगी। शाह साहब आपने इस चीज़ को भी गौर किया होगा कि वज़ीर आला खिलाफ तवक्को ये जो 2.5 साल वाली एक बात हमेशा से करते रहे थे, अबूरी सूबे का जब भी जिक्र करते थे, इस बार उस पर भी बात नहीं किया। और जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से और बिजली के मामला पे उसने बात किया, उनका जो टारगेट था वो तकरीबन कम से कम 4 साल का था। तो वो जो पहले की जो जज्बा था वो थोड़ा सा दस्तबरदार हो गया, मांद पड़ गया। देखिए आज बर्फ पड़ गई बॉडी है। लैंग्वेज काफ़ी वो जो ना वो आप कह सकते हैं वो उससे लग रहा था कि वो काफ़ी कूल है। पहले ये थोड़ा सा जज्बाती होते थे और वो नहीं थे, आज वो बिल्कुल आराम से बैठे। ऐसा ही ये शाह साहब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, सब ने मिल के झंझोड़ के सीएम को कहा कि जी अब जज्बाती ना हो जाएं। जैसे भी हुआ कुछ तो तब्दीली आई ना, कुछ तो तब्दीली ये हकीकी मानों में चले ये तब्दीली आ गई है। तब्दीली थी। और उनके साथ वो पहली मरतबा ये था कि कुछ 4 मिनिस्टर्स बैठे हुए थे लेफ्ट राइट में, ठीक है, बिल्कुल। वरना वो अकेले होते थे और मिनिस्टर्स नहीं होते थे, सेक्रेटरी साहब लेकिन होते थे। रेलेवेंट मिनिस्टर्स नहीं थे। आज बिजली और गंदम पे बात हो रही थी, मुश्ताक हैं पावर के मिनिस्टर, वो नहीं थे। और गंदम वाला तो लाहौर चले गए ना। लोन साहब के बारे में बताया कि वो लाहौर चले गए हैं, ठीक है। अच्छा चलो ये चीज़ें चलती रहती हैं, बट इसमें जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से चीफ मिनिस्टर साहब जो एक बता रहे थे, खाका जो ड्रा कर रहे थे, वो उसको लेके अगर हम आगे बढ़े तो ये तकरीबन 2-2.5 साल का एक प्रोसेस है। अगर आज से शुरू करें तो मतलब वो गांव की सतह पे कमेटियों को स्ट्रेंथन करना है, उनका सेक्रेटरी वहाँ बनाना पे है, सेक्रेटरी बनाना है, उनके सैलरीज को मैनेज करना है। तो और उसको जरा जीविका बल्दियाती निज़ाम पूरे पाकिस्तान के इससे बहुत मुख्तलिफ होगा, चूँकि यहाँ पे वो एक रिवायात हैं जरगे की जो पाकिस्तान के और सूबों में नहीं है। तो उसको तो वो जो मैं समझाऊँ, जो पहले भी मैंने गुजारिश की थी कि अगर सीधे साधे कोई बल्दियाती इलेक्शन करवाने हैं तो वो मार्च अप्रैल तक पॉसिबल है। इस मार्च अप्रैल तक 2022। अच्छा, अगर सीधे साधे जो पहले 2004 में जिस अभी तो आपकी लिमिटेशन सर वो भी हो हल्का सकता है, बंदियां वो भी हो कुछ भी नहीं सकता है, वो हुआ भी है। 2 महीने का काम है। वो अगर राजा शहबाज साहब इतने तगड़े आदमी है सर, उनको कहा जाए ना आपने 10 दिन में ये सब कुछ करना है, तो वो जंगी बुनियादों पे वो बड़ा एक्सपीरियंस है उनको। राजा साहब हुकूमत को कटहरे में खड़ा करके बड़ा एक्सपीरियंस कंटेम्प्ट भी कर सकते हैं। हाँ, बड़ा एक्सपीरियंस है उनको, फ्री हैंड दिया कर है। सकते हैं। माजी की तरह सजाए मौत ना दे दे। ये तो एक तो बल्दियाती इंतजाम आ गया कि अगर इस तरफ जाना है तो फिर टाइम लगेगा, ठीक है। दूसरी बात यह कि एक चीज़ तय है, बिल्कुल तय है, और इसको कोई आगे पीछे नहीं कर सकता है। आईनी अबूरी सूबा गिलगित बल्तिस्तान अगर बनने जा रहा है तो फिर आपके इलेक्शन 2023 में होंगे और अगस्त 2023 में गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान की तरह आपकी निगरान हुकूमत एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो कई ख्वाब देखिए वो बिखर गए। हो जाता ना, हो जाता वो कुर्बानी देखिए, देंगे। वो क्या है पता नहीं है, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं है। बंदा 10 साल का सोचता है, कुर्बानी देंगे। अगले दिन क्या होता है।
देखिए कुर्बानी कोशिश तो करेंगे नहीं देने की। आप डंडे के जोर पे भी कुर्बानी होती है ना, सही है, वो भी पॉसिबल है ना। डंडे के जोर पे कुर्बानी छुड़वाई भी जाती है, दिलाई भी जाती है, शाह साहब, दोनों चीज़ों। बस वो, लेकिन फिलहाल कुर्बानी वो होगी डंडे के जोर पे। ठीक अगर है। नहीं, दूसरी बात जो एक और जो इशू डिस्कस हुआ लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से, हाँ, इंतहाई अहम, जिस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत थी, अभी यहाँ पे दफ़ा 144 लगा है 3 महीने के लिए। ये बट सीएम साहब ने इसको क्लियर कर दिया कि बहुत अरसे तक हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते 3 महीने के लिए, क्योंकि हमने इन्वेस्टर्स को भी लाना है, बगैर इन्वेस्टर के। लेकिन उसके लिए ये एक पूरा एक हमने तरीक़ाकार उन्होंने कहा जी कि हमने तय किया। फिर एहतसाब के हवाले से भी बात पूछी गई, तो उस पर उन्होंने कोई कहा खास जवाब दिया था? जवाब खास ये देखिए, चीखें मरीख तक सुनाई दे रही हैं, तो इससे बड़ा एहतसाब और क्या होगा। मरीख तक या मरीख तक? मरीख तक मेरे ख्याल में। ठीक है, ये मरीख तक क्यों हो ठीक सकता है, मरी तक ताज़ा इशू। मरी की चीखें अल्लाह न करे वो सुनाई दे, जो चीखें पिछले दिनों सुनाई दी है वो अल्लाह न करे कहीं सुनाई दे, बाकी मरीख तक चलो ठीक ठीक है। हो गया। तो वो वैसे तसव्वुराती एक अमल है ना ये। तो किसकी तरफ से आता है कि मेरे ख्याल में हफीज़ुर रहमान की तरफ, ये शायद वो बता रहे थे कि हफीज़ साहब की तरफ था वो नेब में पेश है, और उसमें उसने ये बताया कि जो लोग इनके खिलाफ दरख्वास्तें लेके नेब बड़ी में गए थे, खूबसूरत मिसाल दी वैसे, वही लोग कैप्टन उसकी कैप्टन शफीक शफीक की तरफ मिसाल दी इशारा उसने। कर रहे थे हाँ। कि वही लोग उन्होंने उसके हफीज़ के साथ खिलाफ नेब के दरख्वास्त कोर्ट- दिया, हाँ, और नेब- पेशी के बाद आके नेब- कहा कि ये पेशी गलत है। गलत है। नहीं, इस पर सवाल ये भी उठता है ना कि अगर चीखें इनकी सुनाई दे रही हैं तो क्या हुकूमत इनके खिलाफ एहतसाब कर रही है कि नहीं? एहतसाब इदारा खुद ही कर रहा है। सर हुकूमत को एहतसाब- सिर्फ सुनाई दे रही है, उसको पता नहीं है फिलहाल। एहतसाब इदारे कर रहे हैं, चीखें इनको सुनाई दे हाँ, रही हैं। इनको सुनाई दे रही है। मीर साहब, इस पर आप रिस्पॉन्ड करें। कैप्टन शफी साहब ने खुद हफीज़ साहब के खिलाफ एक दरख्वास्त दिया नेब के लिए, और उस पर पेशी शुरू हो गई, तो शफी साहब उसके साथ खड़े हो गए और कहा कि ये सारा अमल गलत है। ये असल में इस तरह है ना, बहुत सारे दर्जनों के हिसाब से नून लीगी जो इमरान खान को खिलाफ उनको कायद नहीं मानते थे, उनको पता नहीं क्या क्या कहते थे, और यहाँ की मकामी क़यादत को बुरा भला कहते थे। नून लीगियों की बात कर रहा हूँ, जो जब तहरीक इंसाफ में गए तो धुल के साफ हो गए, इसी तरह वो इधर आके धुल के साफ हो गए। नहीं, लेकिन वो दरखास्त तो पड़ी हुई है ना, दरखास्त पे तो कोई बारिश का खतरा भी नहीं है। नहीं, वो कोई निकालने की कोशिश करेंगे या कोई अबूरी जमानत वाला देखो मामला जो करेंगे। डेवलपमेंट हो गई, जो कैंसर हॉस्पिटल का आज का जो इफ्तिताह दिन रहा। हुआ, ये सारा क्रेडिट जाहिर है पीएमएलएन को जाता है। कार्डिक सेंटर, कैंसर हॉस्पिटल, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के जितने मंसूबे हैं, सर, इनकी वो- निगरानी भी वो खुद करते हैं, सर वो निगरानी इनके जो भी फंड्स भी करे, वो खुद जो भी लेके आते करे, हैं। इसमें एक गुजारिश मैं ये करूँ, देखिए शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, हुकूमतें आती हैं जाती हैं ना। अब पिछली हुकूमत ने जो काम किए हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। सियासी लोग नहीं करते हैं ये उनकी तरफ, हमें कम से कम करना चाहिए। अगली दफ़ा जब ये हुकूमत नहीं होगी, कोई और आएगी, हमें इस हुकूमत के किए हुए कामों को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये नहीं कह सकते कि उस एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक कमीशन का उसमें रोल था, उसमें उस हुकूमत का किरदार था, मेरे साहब, आप उन्होंने उसको हर किया। अपोजिशन का ही साथ देने के लिए क्यों तैयार है? नहीं वो मेरे ख्याल में कोई नहीं, इसमें देखें, डिफॉल्ट इसमें डेफिनेटली नून लीग का बहुत, ये जो कार्डिक स्टार्ट लिया था, बिल्कुल लिया। इतने बड़े मसले हैं। यकीन करें कि कैंसर के पेशेंट्स को आप यहाँ से लेके बहुत इस्लामाबाद जाते जरूरी थे, उस मरीज पे इतना खर्च नहीं आता था जितने उसके आने जाने attendants, और में। वो घर से डिसलोकेट होने के बाद जिस कर्ब से गुजरते थे। और एक और चीज़ जो है वो मेरे ख्याल में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। अब इस हुकूमत ने जो अच्छे मतलब बिजली के निज़ाम इन्होंने ठीक किया, बेहतर ठीक किया कर है, दिया, आप उसको बिल्कुल। कह सकते हैं। अब आप आपके ठेकेदारों के पता नहीं पिछले 12 साल के Liabilities सारे वगैरह मामले थे। पड़े हुए थे, रिवाइज कर दिया। चंद हफ्तों में वो सारे मामला वो हल हो गए, मेगा प्रोजेक्ट्स आ गए। जहाँ खराबियां होंगी, गंदम वो के ऊपर discuss भी कर- इनकी- गंदम के इनका ऊपर रोल अपना कोशिश रहा कर है। रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में 2 अरब का इजाफा भी कर ताकि दिया। वो अब हमारे किसी बात से कोई खुश होता है, नाराज होता है, उस पर हम क्या करें? वो फिर उनका काम है, जो खुश होते हैं या नाराज होते हैं। हमारा काम है कि जो हमारी समझ में है, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, वो हम बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। खुश होना और नाराज होना तो लगा रहता है। नाजरीन, प्रोग्राम आपने सुन लिया, अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजें और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।